Jai Narayani students, my name is Nageshwar Sharma and I'm your social studies teacher for the session 2020-2021. Today we are going to start our second chapter of class 10th history, and the name of the chapter is Nationalism in India. Now in this video lecture we will study about meaning of nationalism, the concept of nation state, and how nationalism emerged in India. This will be the introductory part of this lesson. Now, the first topic, nationalism. Nationalism can be defined in various ways, but for the sake of our board exams, I have chosen two meanings that you can write in your exams. The first way to define nationalism is that it is the feeling of collective belongingness with the nation. Students, you have learned in the first chapter, Nationalism in Europe, that nationalism basically means the feeling of collective belongingness. The people living within a certain geographical boundaries, when they consider themselves belonging to that part of land, and they are collectively, unitedly thinking like this, then this feeling can be called nationalism. जब किसी एक देश में, एक क्षेत्र में रहने वाले लोग उस जियोग्राफिकल लोकेशन जहां पर वो रहते हैं उसके साथ खुद की आइडेंटिटी को कलेक्टिवली देखते हैं, लाइक टुडे वी इंडियंस consider ourselves and identify ourselves with our country, India. This feeling that we belong to this nation is called nationalism. Prior to nationalism in Europe, this feeling was not prevalent. नेशनलिज्म इन यूरोप के पहले, या बेसिकली जो फर्स्ट इम्प्रेशन जहां से स्टार्ट हुआ था नेशनलिज्म का, विच यू स्टडीड इन क्लास 9th, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे पहले ये फीलिंग लोगों के अंदर नहीं थी. बेसिकली मेनी kingdoms ruled them. They lived under various kings. They had no fixed geographical boundaries. Therefore, this feeling was not prevalent in that time. But after nationalism, they started, during these revolutionary movements, they started considering themselves a part of their fatherland, as the concept was in French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था यूरोप में दे कॉल्ड देयर लैंड एज फादरलैंड. जैसे हम इंडिया को मदरलैंड कहते हैं, वैसे वो अपने नेशन को, अपने लैंड को फादरलैंड कंसिडर करने लगे. एंड दे स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद द नेशन. मतलब वो खुद को अपने देश से जोड़कर देखने लगे, और इस तरह से वहां पर लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग्स देखने में आई. Although there were many measures taken by the freedom fighters, their leaders, जो फ्रीडम स्ट्रगल में उनके लीडर्स थे, उन्होंने और भी बहुत से तरीके अपनाए जिससे कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ सके, लाइक इंट्रोड्यूसिंग न्यू सिंबल्स,
new songs and introducing new ideas. सिंबल्स में जैसे उनके जो फ्लैग्स होते थे, एंड पर्सनिफिकेशन ऑफ देयर नेशन, जैसे जर्मनी की केस में जर्मेनिया, जैसे आप इमेज देख रहे हैं भारत माता का स्लाइड में, ये इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान नेशनलिज्म को बूस्ट करने के लिए यूज किया गया। वैसे वहां पर स्टैच्यूज लगाए जाते थे, पर्सनिफाई किया जाता था कंट्री को, जैसे जर्मनी को जर्मेनिया नाम से एक विमेन के रूप में पोर्ट्री किया जाने लगा। सो दीज नेशनलिस्ट or the nationalist leaders started thinking of new ideas and introducing new symbols, icons, songs, so that this nationalism could be fostered in the people. The second way to define nationalism is the desire for political independence in a country that is controlled by or is a part of another country. नेशनलिज्म को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कंट्री में रहने वाले लोग या किसी जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग, अगर वो किसी दूसरे कंट्री से गवर्न किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, मींस दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। व्हेन दे स्टार्ट डिजायरिंग फॉर इंडिपेंडेंस, जब वो आजादी के लिए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए इच्छा रखते हैं और उसके लिए फाइट करते हैं, तो जो फीलिंग उनके अंदर होती है अपनी इंडिपेंडेंस को हासिल करने की, वो भी नेशनलिज्म कही जा सकती है। सो दीज आर द टू डेफिनेशंस दैट यू कैन राइट इन योर एग्जाम। नाउ द नेक्स्ट इज नेशन स्टेट्स। As studied by you in chapter 1, a nation state was one in which the majority of its citizens came to develop a sense of common identity and shared history or descent। यानी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो आया था वो ये था कि जहां पर ढेर सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स, किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर रहने वाले ढेर सारे लोग, ज्यादातर लोग, जब उनके अंदर कॉमन आइडेंटिटी की सेंस आ जाती, व्हेन दे स्टार्ट कंसिडरिंग देमसेल्व्स कॉमन, like they start believing that they are nationals of a common land or the same country, एक ही देश के वो सब रहने वाले हैं और उनकी जो बेसिक आइडेंटिटी है वो उनके कंट्री से है। जब ऐसा लोग मानने लगते हैं ज्यादातर लोग, देन इट वाज कॉल्ड अ नेशन स्टेट। ऐसे स्टेट को, ऐसे देश को, ऐसे कंट्री को एक नेशन स्टेट कहा जाता था। एंड डेफिनेटली दे शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, और उनके अंदर ये सेंस भी होती थी कि भाई उनका जो हिस्ट्री है वो सेम है, या जो उनका वंश है, डिसेंट है, वो सेम है, तो उनको उस कंट्री को नेशन स्टेट कहा जाता था। मींस एक ऐसा कंट्री जहां के रहने वाले लोग आपस में खुद को कॉमन समझते हैं या कलेक्टिवली आइडेंटिफाई करते हैं, और उनकी हिस्ट्री सेम हो या फिर डिसेंट सेम हो, तो ऐसे नेशन को नेशन स्टेट कहा जा सकता है। नाउ दिस सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी वाज फोर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल्स। शुरू में ये नहीं था, इसका मतलब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से नहीं था, यानी कि सारे लोग स्टार्टिंग से ही खुद को कॉमन आइडेंटिटी वाला नहीं समझते थे। दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट किंगडम्स, स्मॉलर किंगडम्स और सर्टेन ट्राइबल ग्रुप्स। इस तरह से वो आपस में डिवाइडेड थे, उनका कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं होता था, ना ही वो खुद को कॉमन समझते थे। दे कंसिडर्ड देमसेल्फ different from other groups, although they lived in the same country within the same geographical area, but still they
considered themselves different from other groups. So, how this sense of common identity developed in them? It was forced through struggles. जैसे कि इंडिया में बहुत से डिफरेंट स्टेट्स से डिफरेंट कल्चर के रहने वाले लोग थे, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग थे. बट व्हेन द ब्रिटिशर्स gained control of the country, after that they started struggling against them. उन्होंने मिलकर के अंग्रेजों का सामना किया, और इस स्ट्रगल के दौरान ही उनको पता चला कि वो सारे लोग, दे ऑल वर विक्टिम्स ऑफ द सेम गवर्नमेंट, सेम रूलर. एक ही रूलर से सारे लोग परेशान थे, और इस तरह से उनके अंदर कॉमन आइडेंटिटी का सेंस आया, या दे बिकेम यूनाइटेड. सो थ्रू स्ट्रगल्स एंड थ्रू एक्शन ऑफ लीडर्स. तो एक तो उनका स्ट्रगल सेम था, दे वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द सेम गवर्नमेंट, द सेम रूलर. और उसके बाद व्हेन नेशनल लीडर्स लाइक गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, दे केम अप, उन्होंने लोगों के अंदर इस फीलिंग को और ज्यादा मजबूत किया कि उनका जो दुश्मन है वो एक ही है. ऑल्दो दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट्स, दे हैड डिफरेंट कंडीशंस, they had different demands, but still the leaders made them believe that they could only fulfill their desires, or they can get what they want by their collective actions. तो यहाँ पर लीडर्स ने इस फीलिंग को, इस सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी को और मजबूत करने का काम किया. And obviously the common people also, they also struggled along with these leaders and spread their messages across the country. So all around the world, these nation states came up because of the efforts of leaders, the struggles they faced, and the actions of common people also. Now the next one is nationalism, how nationalism emerged in India. यूरोप की हमने बात करी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से नेशनलिज्म की शुरुआत हो गई, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स को जगाने के लिए वहाँ के लीडर्स ने क्या क्या नए नए सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए, नए तरह के सॉन्ग्स, और जो पर्सनिफाई किया गया कंट्री को, उसके स्टैच्यूज लगाए गए चौराहों पर, वो सारी चीजें की गई. यूरोप के ये 9th में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, फिर 10th में आपने नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर जो पढ़ा, उसमें देखा डिफरेंट कंट्रीज, जर्मनी, इटली, फ्रांस, वो सारा आपने दोबारा से पढ़ा कि कैसे वहां पर नेशनलिज्म आया. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, द नेशनलिज्म इन इंडिया started with the anti-colonial movement, and not only in India but many other colonies like Vietnam, South Africa, etc. There also the feeling of nationalism started with their anti-colonial movements. Anti-colonial movements का क्या मतलब है? पहले कॉलोनी समझते हैं, कॉलोनी का क्या मीनिंग है, हालांकि आपने ये 7th 6th में भी पढ़ा हुआ है. कॉलोनी एक ऐसे कंट्री को कहा जाता है जहां पर कि दूसरे कंट्री का रूल होता है. कॉलोनी इज अ कंट्री or is a geographical area where outsiders control the government. बाहर के लोग कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को. The other countries control the government. Like India was a colony of Britain, it was a British colony. इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स रूल करते थे, उनके बनाए हुए कानून लागू होते थे,
उन्हीं का बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल लागू होता था, तो इट वाज अ कॉलोनी ऑफ इंडिया। सिमिलरली साउथ अफ्रीका में कुछ फ्रेंच कॉलोनीज थी, कुछ जर्मन कॉलोनीज थी, कुछ ब्रिटिश कॉलोनीज थी। इवन अमेरिका वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी अर्लियर। अमेरिका में भी पहले ब्रिटिश कॉलोनीज थी। तो ये होता है कॉलोनी। अब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब इन्हीं जो बाहर के रूलर्स हैं उनके खिलाफ जब आंदोलन किया जाता है, मूवमेंट चलाए जाते हैं इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए, यानी अपने खुद की कंट्री को खुद गवर्न करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो उसको एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स कहा जाता है। और इन्हीं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से ही जो हमारा मॉडर्न नेशनलिज्म है उसकी शुरुआत इंडिया में हुई। So how nationalism began in India? So the growth of modern nationalism in India is connected with the anti-colonial movements. इन anti-colonial movements में क्या हुआ? People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. जो colonial government थी, जैसे कि हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करने के दौरान आपस में लोगों के बीच में जो यूनिटी आई, या उन्होंने जो यूनिटी को डिस्कवर किया, पहले खुद को अलग ही समझते थे, लेकिन बाद में उनको ये रियलाइज हुआ कि वो मिलकर अगर काम करेंगे तभी वो खुद को आजाद करा पाएंगे और अच्छे तरीके से रह पाएंगे। उनका जो दुश्मन है, जो कि उनकी डिजायर्स, उनकी वांट्स, उनकी नीड्स को पूरा होने के लिए जिसको हटाना जरूरी है, वो उन्होंने पहचान लिया और वो एक साथ एकजुट होकर के उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। इसी से उनके बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ colonialism differently। जैसा कि बताया, every class of the society or every group of the society felt the effect of colonialism differently। हर क्लास, हर ग्रुप के लिए इस कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट डिफरेंट था। जैसे कि पीजेंट्स के लिए दिक्कत ये थी कि उनको लगान बहुत ज्यादा उनसे जबरन वसूला जाता था। जो ट्रेडर्स थे उनका ट्रेड बर्बाद कर दिया ब्रिटिशर्स ने। उनके सामानों पर जो इंपोर्ट टैक्स होता था यूरोप के अंदर बढ़ा दिया, जिससे कि वो सामान अपना नहीं बेच पाते थे। यहाँ पर कंपलसरी कर दिया कि आपको ब्रिटिश गुड्स परचेज करने हैं। सो इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स, ट्रेडर्स के लिए डिफरेंट तरीके से उन्होंने उसका इफेक्ट पड़ा कॉलोनियलिज्म का। किसानों पर अलग तरीके से उसका बुरा प्रभाव पड़ा। जो रूलर्स थे उनको अलग तरीके से परेशान किया सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डरा धमका करके अपने सब्जुगेशन में ले लिया। कई जगहों पर कुछ लोगों को जबरन उनकी गद्दी से हटा दिया। जैसे झांसी का आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीबाई का सतारा की कहानी सुनी होगी, जहां पर उन्होंने कुछ नई तरीके के रूल्स और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करके और वहां का जो राजगद्दी है वो हथिया लिया। कुछ जगहों पर उन्होंने अपनी फोर्स से वहां के किंग्स को मरवा दिया, कब्जा कर लिया। सो दिस वे डिफरेंट ग्रुप्स, वेदर इट वाज अ रूलर अंडर देयर गवर्नमेंट or a trader or a peasant, all had different effects of this government. Now the Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement. अब इन सबके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग है, ये कांग्रेस को पता चल गया था। ये सारे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से छुटकारा पाना चाहते हैं। एंड देयरफॉर महात्मा गांधी के आने के बाद इसी नेशनलिज्म की फीलिंग को और बढ़ाया गया और उनको
एक साथ ला करके मास मूवमेंट्स स्टार्ट किए गए. They already had the feeling of nationalism, but what Mahatma Gandhi did was to bring them together and start mass movements. छोटे मोटे मूवमेंट्स तो होते रहते थे, लेकिन बड़े लेवल पर मूवमेंट्स नहीं होते थे जिससे कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था. छोटे लेवल के मूवमेंट्स को वो आसानी से सप्रेस कर दिया करते थे. But Mahatma Gandhi brought them together and started large scale movements across the country, and every group of the society, every class of the society participated with Mahatma Gandhi, and thereby we could gain our independence later on. As you can see, these are a few pictures where Mahatma Gandhi is leading people and they are being gathered, being united to start mass movements against the government. And so this movement takes place. Now I have some homework questions for you. You have to answer these questions. Now these questions are based on your previous chapters and what you studied in previous classes. So try to answer them. Write these answers in your notebook and send me using your WhatsApp. Thank you, students, for connecting with me. In the next lecture, we will study a brief introduction about World War I and how it impacted Indian political system and gave a way to new types of movements. Thank you.